हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे गेट एन ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिस वीडियो सीरीज हम बात करते हैं 10 मिनट में कोई नया कंसेप्ट सीखते हैं। सो in this session we are going to discuss about operations on signal student. So here in the last session we have discussed about what is signal, and in today's class we will discuss how to perform different operations like time shifting, scaling, reversal on signals. So before going to start, I would like to introduce myself. I am Ankur Sharma, faculty for GATE and ESE. You can directly read this student. I'm having 9+ year teaching experience for GATE and ESE, mentored more than 20,000 students for GATE and ESE across India, cracked GATE exam multiple times, and also qualified RVUNL state PSU exam, taken 50+ motivational seminars, and completed 200+ batches for GATE and ESE at different GATE coaching institutes in India. You can follow me. This is my profile on Unacademy. And for any query regarding the daily live classes, you can contact me on this number. So my dear student, without wasting of time, start करेंगे signum system. As you all know, what is a signum signal? Signum signal is represented by SCG and signum function of t, and you know that the magnitude is 1 when t is greater than 0. When t is less than 0, it is -1 only. And if we talk about the curve of this, you know very well the curve of this signal carrying +1 magnitude from 0 to infinity, and it will carry -1 magnitude from -infinity to 0. And what it will be at t equal to 0? It is discontinuous in nature, and the value by using the Gibbs phenomena is 0 only. So student, you can conclude that the signum function is always the signum function of t. The signum function of t function is always an odd signal. Student, tell me yes or no? Because it is symmetrical about origin. It is symmetrical about origin like that. So we can say that the signum function is always odd signal. The signum function is also an bounded signal. It is a bounded signal because the signum signal never transits to infinity for any value of time. So that is why we can say that the signum function value t is greater than 0 plus 1 and t is less than 0 minus 1. So it is a bounded signal and it is an odd signal only. Now student, I am going to perform some operations on this. So जल्दी से फटाफट से मैं इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूं. आप बहुत ध्यान से यहां देखिएगा. Now student, let us assume that this signal is x of t. हम परफॉर्म करना चाहते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ t minus 4. Then what will happen? अगर ये सिग्नम फंक्शन t equal to 0 पे था पहले, now here is t minus 4. ये बताता है कि टाइम शिफ्टिंग होने वाला है, एंड -4 का मतलब राइट शिफ्ट में होने वाला है. इसका मतलब ये पूरा सिग्नम फंक्शन इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा. सो द न्यू लोकेशन जो यहाँ आएगा वो -4, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1. तो ये जो हमने कर बना दिया, ये सिग्नम फंक्शन ऑफ t -4 का बना दिया. सिमिलरली अगर मैं बात कर लूं कि अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना हो, सो व्हाट इज सिग्नम फंक्शन ऑफ t +2? सो सर, सिग्नम फंक्शन विल शिफ्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड. और कितना शिफ्ट होगा? हाउ मच शिफ्टेड? बाय यूजिंग द जो भी यहाँ गिवन है उससे. तो +2 है तो इधर आ जाओगे आप, तो -2 पे आपका जो है अब सेंटर पॉइंट हो जाएगा. और इस तरह से ये सेंटर पॉइंट का मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो जाएगा. तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1 हो जाएगा. तो ये सिग्नम फंक्शन ऑफ t +2. तो अभी तो मैंने प्योर शिफ्टिंग था, यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट. अगर मैं अब इसमें, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें ऑपरेशन को इन्वॉल्व कर दूं, लेट अस अज्यूम दैट कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि x ऑफ t का एक्सप्रेशन ये है 2 प्लस सिग्नम फंक्शन ऑफ -t +2. तो आप देखिए इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है. इसमें एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग भी है, इसमें टाइम शिफ्टिंग भी है, एंड इसमें टाइम रिवर्सल भी हमने परफॉर्म कर लिया. नाउ स्टूडेंट, अगर मैं एक एक ऑपरेशन को नेचुरली परफॉर्म करता हूं, तो आपको पता है सबसे पहले वी हैव टू परफॉर्म शिफ्टिंग फर्स्ट, देन फॉलोड बाय रिवर्सल. सबसे पहले आप शिफ्टिंग परफॉर्म करोगे, तो आप बताइए कि सिग्नम फंक्शन ऑफ t +2 क्या बना. अगर मैं सिग्नम फंक्शन ऑफ ओनली t +2 बनाता हूं पहले, तो क्या ये -2 पे चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में जाएगा. -2 पे जाने के बाद ये सिग्नल कुछ इस तरह से होगा. अब फाइनली अगर आप इस पर रिवर्सल अप्लाई कर देंगे, तो क्या स्टूडेंट, ये रिवर्सल अप्लाई होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो -2 पे है वो फिर +2 पे बनेगा, और रिवर्स का मतलब y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल इमेज बनेगी. तो सिग्नल फिर ऐसा उल्टा हो जाएगा, ये इधर 1 और ये इधर फिर -1. तो ये जो नेक्स्ट कर्व बनाया मैंने, क्या ये सिग्नम फंक्शन ऑफ
माइनस टी प्लस टू का बना दिया कि हमने, टेल मी स्टूडेंट यस और नो। तो हमने सिग्नम फंक्शन ऑफ माइनस टी प्लस टू का कर्व बना दिया है ये वाला। अब हमको केवल क्या करना रहा इसमें, ये +1 है और ये -1 है सर। फाइनली आपको 2 से, इसमें ये अभी 0 पे था इंटरसेक्शन पॉइंट, अभी अगर आपको 2 से एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग आप कर देंगे, अगर आप फाइनली 2 से एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग कर देंगे तो क्या मिल जाएगा सर, ये जो 1 है ये फिर 3 बन जाएगा, ये जो 1 है ये फिर 3 बन जाएगा। तो जो एग्जैक्ट कर्व आपको दिखाई देगा, क्या वो कुछ कर्व ऐसा होगा क्या, थोड़ा डायग्राम मैंने छोटा बनाया है, क्या 2 प्लस सिग्नम फंक्शन ऑफ माइनस टी प्लस टू कुछ ऐसा होगा जहां पे ये जो इंटरसेक्ट, ये जो पॉइंट है ये 2 होगा, और जब आपने +2 से शिफ्ट किया था तो देखो 1 तो 3 पे रीच किया, और -1 में अगर आप +2 ऐड करोगे तो आप +1 को रीच करोगे। सो एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1। सो x1 पे आंसर क्या आने वाला है आपका, एग्जामिनर ये दे सकता है कि x1 एंड x4 इज इक्वल टू व्हाट। तो x1 कितना लिखोगे आप, x1 का वैल्यू सर डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट 3, एंड x4 का वैल्यू क्या है सर, x4 का यहां से वैल्यू 1 आया, तो हम बोलेंगे 3 + 1 इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट 4। सो इस तरह के क्वेश्चन जो कि आपके कंसेप्ट को अच्छा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे। सिग्नम फंक्शन में हमने अभी ऑपरेशन जो देखा है वो क्या देखा है, शिफ्टिंग, स्केलिंग। अच्छा अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, वन मोर एग्जांपल, आप देखिए सिग्नम फंक्शन के साथ अगर हम ये करते हैं ट्वाइस ऑफ, देखिए जरा ध्यान से, सिग्नम फंक्शन ऑफ -t + 3 करना है। सो अगर मैं इसकी भी ट्रिक बना दूं आपके लिए, इसकी भी अगर हम ट्रिक बना दें, बहुत ध्यान से देखो, तो स्टूडेंट जब भी माइनस आ जाए, जब भी यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले आप सिग्नल को टाइम रिवर्स कर ही दो। टाइम रिवर्स मतलब जो जनरल सिग्नल होता है वो ऐसा होता है, वो ऐसा +1 और -1 कैरी करता है। जब भी आपको रिवर्स दिख जाए तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है कि आप उस सिग्नल को रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब वो जो सिग्नल बनेगा फिर वो ऐसा बनेगा, ऐसा से ऐसा बनेगा, मतलब सिग्नल को उल्टा कर दो। तो स्टार्ट कहां से कर दो उसको, जो इंटरसेक्शन पॉइंट वो कहां कर दो आप, +3 पे। तो देखो ये +3 पे हो जाएगा और डायरेक्टली ये शॉर्ट ट्रिक बन गया, ये +3 पे बनेगा, ऐसा बनेगा। मतलब पिछली बार हमने पहले शिफ्टिंग किया फिर रिवर्सल किया, इस बार मैं बोल रहा हूं कि आप कुछ मत करो, आप सिग्नम फंक्शन ऑफ -t + 3 डायरेक्ट कैसे बना दो, क्योंकि टाइम रिवर्सल ऑपरेशन है तो पहले लिमिट -∞ से इन्फिनिटी पे जाएगा, -∞ के से आगे की तरफ जाने वाला है, तो आपको रिवर्स करना है, तो सिग्नल -∞ से आएगा ऐसे, तो वो सिग्नल को उल्टा कर दीजिए, जो +1 का वैल्यू होगा वो इधर, -1 का वैल्यू जो होगा वो इधर हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी पॉइंट हो, अगर ये +3 है तो +3, मान लो यही पॉइंट अगर -3 होता तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है वो इंटरसेक्ट फिर -3 पे हो जाता। सो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा बाय फाइनली मेरे को उसको 2 के स्केल करना था, तो ये लो यहाँ पे 2 पॉइंट हो जाएगा एंड दिस पॉइंट विल बी -2 सर। तो ये -1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से आपने एम्पलीट्यूड स्केल कर दिया। सो स्टूडेंट ऐसे कंसेप्ट आपको हेल्प कर सकते हैं अदर टॉपिक में, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है जहां ये बेसिक कंसेप्ट आपके लिए फ्रूटफुल रह सकते हैं। सो स्टूडेंट अगर आपको भी ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लाइव AN के कोड यू कैन यूज और 10 AN दोनों ही कोड मेरे हैं, यू कैन यूज दिस कोड, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट एंड you will get my personal guidance till the date of GATE exam. Okay student, and this is my phone number 9079330095. You can contact me फॉर एनी क्वेरी। आप 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जा सकते हैं, ओवरऑल अमाउंट जो रहेगा वो 25,000, बट लाइव AN के कोड याद रखिए, लाइव AN के कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट 10%, तो ओवरऑल जो अमाउंट आपको पे करना है वो 22,500। आप EMI के थ्रू भी जा सकते हैं, पर मंथ EMI आएगा 1875 रुपीज। सिमिलरली 24 मंथ के लिए भी जा सकते हैं, लाइव AN के कोड को याद रख लीजिए, LIVE लाइव AN के कोड याद करिए, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें स्टूडेंट, और आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी पे डेली लाइव क्लास चल रहा है, डेप्थ नॉलेज के लिए, गेट ESC में अच्छा रैंक लाने के लिए यू कैन डायरेक्टली गेट सब्सक्रिप्शन एंड बाय यूजिंग दिस कोड यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। सो माय स्टूडेंट दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इसी चैनल से जुड़ते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आया करेगा व्हेनेवर वी विल अपलोड न्यू वीडियो। थैंक्स अ लॉट।